Welcome back. You're watching Times Now. I am Meenakshi Upreti. Our top focus is the Justice for Trisha campaign. We have a big breaking news coming in. So the police has asked for a 7-day remand of her husband Samarth Singh in the Trisha Sharma death case. That is the latest coming in. In fact, there is an update which has come in that police has managed to get that 7-day custody. He's been sent to the 7-day remand. Samarth Singh sent to 7-day custody when it comes to the Trisha Sharma death case. 7-day remand for Samarth Singh. Remember, far as the case is concerned, it has seen many twists and turns. The husband, Samarth Singh, had been produced in court. Earlier, it was Times Now which had broken how the police, or the SIT rather, was going to demand for the 7-day custody, 7-day remand of Samarth Singh. And now that has happened. The cops have, the SIT has managed to get a 7-day remand. He is going to be grilled now in the remand. That's the latest coming in. My colleague Priyank, I believe, is live with us on the broadcast. Priyank, over to you. Give us all the updates coming in from the court. I believe police managed to get 7-day remand of Samarth Singh. Yes, Sati, Meenakshi, the local police here in Bhopal has managed to get 7 days of police remand of Samarth Singh. Samarth was produced before the court around 45 minutes back, and the court has granted 7 days of police remand, which was, requested by the police officials. But what was very important, which I could see from my eyes, that Samarth still had a smirk on his face. He was talking to the lawyers, and suddenly Harshit, brother of Trisha, entered with an angry face, because today was the first time when Harshit was watching and physically seeing Samarth Singh. Harshit still had anger on his eyes, where he kept on staring at Samarth, but Samarth was trying to ignore this particular eye contact. Now the police officer from Bhopal Police has got this 7 days of police remand, which will be the time when Samarth will be questioned regarding the 10 days of time period, why he left from the mortuary where his wife's body was kept, and why he did not wait for other formalities to be completed when he actually appeared before the court there in Jabalpur, and stating that I want to complete the cremation process of my wife, which was rejected by the concerned court. Apart from this, we already have broken this information, Meenakshi, that the 4-member team from the All India Institute of Medical Sciences will be flying to Bhopal. They are expected to leave at 6 p.m. today, along with the legal team is coming here. Let's hear to listen to the response which the lawyers are right now giving. I'll try to. प्रोसीडिंग्स अंकुर ने करी है, अंकुर बताएंगे आपको आज क्या हुआ। आज कल यही बता दे रहे हैं, कल जबलपुर से आरोपी को पकड़ के भोपाल लाई है पुलिस। आज पुलिस ने उन्हें सुबह पेश कराया मजिस्ट्रेट साहब के सामने। 7 दिन का रिमांड मांगा था, और सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि अभी शुरू से ये लगातार फरार है 12 तारीख के बाद से, आज मजिस्ट्रेट साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है आरोपी को। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था, समर्थ के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वकीलों अब वो सभी ने देखा, वो हंस रहे थे। अब उनने क्या करा है नहीं करा है पुलिस निकालेगी 7 दिन के अंदर। और पासपोर्ट के संबंध में प्रोसीडिंग हुई थी, उनके वकील साहब ने आज अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया जो आरोपी है उसका, और बाकी 3 एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग है, जो प्रिजर्वेशन के संबंध में हमने लगाई थी जो नंबर के लिए, उसके लिए अभी 29 तारीख लगी है आगे। 10 दिनों तक कहाँ रुके थे, कोई जानकारी उन्होंने अभी कुछ नहीं दिया। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, और इसमें 10 दिन तक वो किसके संरक्षण में थे, अगर कोई सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके पास वो थे, तो उसके लिए भी प्रोसीडिंग है, उसके लिए भी सजा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कल हमने उनको शाम को 5:30 पौने 6 बजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबलपुर के कोर्ट नंबर 32 में से दरवाजा खुलवा करके हमने जब चेक करा तो वो वहां पर बैठे हुए थे, और वहां पे 3 उनके बाबू थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है, और फिर ये वहां से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था, और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि उस कोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए, और चूंकि वो कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी, तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए।
तो इन्होंने वहां पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहां से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफ़ी लंबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहाँ से सेकंड नीचे उतारा इन्होंने, नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहाँ पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा है। मैं वहाँ के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूँ, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए तो मैं और मीडिया पर्सन्स उस कमरे में जब गए तब वहाँ भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहाँ से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं, अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करने दीजिए। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहाँ पे मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ भी हुई। और फिर उस कमरे के अंदर जो चैम्बर था उस चैम्बर में ले जाकर उनको बंद कर दिया गया और हम सबको धक्का मार के उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। और उस हॉल do you think that the bar association officials were? I definitely don't know whether those persons were really lawyers or they were in disguise, some other goons presenting themselves to be the lawyers, क्योंकि जितनी गंदी भाषा, abusive language और जितनी धक्का मुक्की, मैं भी लॉयर हूँ, I was in dress, हम ड्रेस में थे और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है मुझे अपने दिल में विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जहाँ वहाँ पे थे वो वास्तव में वकील थे। आई रियली डोंट नो बिकॉज आई डोंट, दे आर नॉट नोन पर्सन्स टू मी, तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो वकील थे कि नहीं थे। Yesterday he was wearing a cap, he was wearing अंकुर रहो यहीं पे, he was wearing a cap, he was wearing sunglasses और एक कपड़ा भी वो डाले हुए थे, तो फेशियल एक्सप्रेशंस कल तो नहीं दिख रहे थे, बट एवरी अटेम्प्ट वाज टू रन अवे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट हमें पहले ये बताया गया कि वो डीजे साहब की कोर्ट में गए थे और डीजे साहब ने उनको ये बोला, हमको ये पता चला, इस बात की मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन डीजे साहब, मुझे बताया गया कि डीजे साहब ने बोला कि आपको भोपाल में जाके सरेंडर करना चाहिए। लेकिन जो एक पिक्चर उस समय की जो सर्कुलेट हो रही है उसमें वो ऐसी चेयर्स पे बैठे हैं जो कोर्ट रूम में वकीलों के लिए होती है बैठने के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि कोर्ट रूम में वो वकीलों की उस पे कैसे बैठे थे, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा रखा गया? और यदि ऐसा हुआ है, अगर इफ इट हैज सो हैपेंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जज रिफ्यूज टू टेक द रिमांड टू टेक हिम इनटू सरेंडर, तो उनको उसको कटघरे में खड़ा करके और कस्टडी में लेना था और लोकल पुलिस को बुला करके उसको हैंडओवर करना था। जब मैं अंदर गया हूं और मैंने बाबुओं से बोला, मुझे ऐसा लगा कि जब ये अकेले बैठे हैं, लाइट्स ऑफ थी, एसी चल रहा था और पंखे चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद डीजे साहब ने इनको कस्टडी में रखा है। तो मैंने कहा आप साहब को अंदर से बुलाइए, तो बोले साहब तो घर जा चुके हैं। जब मैंने बोला आपने किस हैसियत से इनको रखा, तो वहां अफरा तफरी मच गई एंड देन ये रन अवे। और उसके बाद का जो कुछ भी कल आप लोगों ने देखा है वो सब मीडिया पे आया। आज कुछ वकील जो है Sir, today also what we have seen that कल That obviously is all the updates.